Our today's class is for 11th class. As you know, we are learning earth science. Today, in this class, we will try to understand water springs or water spring. The term spring is applied to the subsurface water which gushes out from the surface of the ground. So, that water which gushes from the surface of the ground through an open space or from a crack or fissure or any type of vent, that water is known as spring water. So springs may be irregular or irregular or regular in their outline. What I mean to say, these water springs, if provide us water throughout the year from the ground, then those are known as regular springs. If they do not provide throughout the year, they provide us water from a period of time, small period of time. That type of spring is known as irregular spring. Springs have two categories according to their mode of origin. One type is known as gravity type of spring and the next is known as artesian type of spring. In this class, we will try to understand what are gravity springs or a gravity type of a spring. Gravity type of spring is a spring or water spring whose water is not confined. The water is not confined within the walls of impervious beds. So all the beds are not impervious. No doubt there are impervious beds. Impervious beds are those beds which do not allow the water to pass on from one layer to another layer. So there are different layers of rocks within the earth's surface or subsurface. So those layers, there are some layers which are porous and permeable. Those are known as pervious beds. But those beds which do not allow the water, which do not have permeability or porosity, they do not allow the water. Those beds are known as impervious beds. Here, in this type of, or we can say in gravity type of spring, this water aquifer, this is a type of aquifer or this is a permeable rock bed which holds water, which is a porous, which have pores which are interconnected, these pores in this layer, and they are not confined between the impervious. So here is not an impervious bed, neither here is impervious bed. Somewhere the water, there is recharge area, so either from this side or from this side, so it is not confined between impervious beds, but the water flows from the loose material, or we can say open passages, due to action of gravity. In this type of spring, the water flows from loose material, open passages, due to action of gravity. So this is a gravity spring. If we try to understand in a simple way, वाटर स्प्रिंग्स क्या होते हैं या वाटर स्प्रिंग क्या है, ये जो टर्म स्प्रिंग हम इस्तेमाल करते हैं जियो हाइड्रोलॉजी में, ये सब सरफेस वाटर होता है, जमीन के अंदर जो पानी होता है वो जब बाहर आने की कोशिश करता है, गशेस आउट, निकलने की कोशिश करता है, सीप्स आउट और कम्स आउट फ्रॉम द ग्राउंड, उसको हम स्प्रिंग कहते हैं. स्प्रिंग्स जो हमारे वाटर स्प्रिंग्स होते हैं, जो जमीन के क्रैक्स के थ्रू, ओपन पासेजेस के थ्रू, या इवन फ्रॉम द रॉक्स, क्रैक्स ऑफ द रॉक्स, जब ये पानी बाहर निकलता है जमीन की सरफेस से, ये कभी कभार साल भर निकलता रहता है, उसको हम रेगुलर स्प्रिंग कहते हैं, और कभी कभी सीजनल, कभी विंटर सीजन में ही निकलता है, कभी ग्लेशियर्स की प्रेजेंस में, ज्यादा ग्लेशियर जब होते हैं तो समर में भी निकल, लेकिन किसी मुद्दत के लिए, किसी टाइम के लिए निकलता है, समय के लिए हमें ये पानी दस्तयाब होता है.
उन स्प्रिंग्स को हम इरेगुलर स्प्रिंग्स कहते हैं। स्प्रिंग्स को हम कैटेगराइज करते हैं दो हिस्सों में अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ ओरिजिन। इनके मोड जो ओरिजिन होता है, किस तरह से स्प्रिंग वजूद में आया है, और इनको हम इसी लिहाज से दो टाइप्स में हम कैटेगराइज करते हैं। एक टाइप्स है हमारा ग्रेविटी स्प्रिंग, दूसरा है ऑटिज्म। ऑटिज्म को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास में हम ग्रेविटी स्प्रिंग को डिस्कस करते हैं। ग्रेविटी स्प्रिंग ऐसा स्प्रिंग होता है जिसका पानी महदूद नहीं होता है, बंद नहीं चारों ओर होता है, किनके दरमियान, इम्परवियस बेड्स के दरमियान, बल्कि एक या दो जगह पे इम्पीरियस बेड्स जो इसको साइड में ब्लॉक साइड में बंद करके पानी को आगे पीछे रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन चारों ओर इसको इम्परवियस बेड्स नहीं होते हैं। नो डाउट हमारी जो ज़मीन है इसके लेयर्स डिफरेंट जो है, कभी कभी परवियस बेड्स है, इम्परवियस बेड्स ऐसे बेड्स होते हैं जो पानी को आगे पीछे ट्रांसमिट नहीं होने देते हैं, ट्रैवल करने नहीं देते हैं, उनको हम इम्परवियस। परवियस बेड्स ऐसे, इसका अपोजिट जो परवियस टर्म है, परवियस ऐसे बेड्स है जो अलाउ करते हैं, जिसमें पोरस एंड परमेबल रॉक्स होते हैं, वो अलाउ करते हैं पानी को। इसी तरह से अगर हम इसको तस्वुर करेंगे, ये बीच वाला जहां हमने ब्लू डॉट्स लगाया है, ये परवियस बेड है, इट इज ए टाइप ऑफ परवियस बेड। सो ये जो परवियस बेड है इसको हम एक्वीफियर कहते हैं, एक्वीफर कहते हैं। ये वाटर एक्वीफर जो मैंने पहले ही बताया आपको, वाटर एक्वीफर क्या होता है पिछले क्लास में। वाटर एक्वीफर, इसमें पानी ऐसे रॉक्स है परमेबल और पोरस जो अपने अंदर पानी होल्ड करते हैं। ये बहुत ही बड़ी रॉक फॉर्मेशन होती है। अब क्या सवाल पैदा होता है, कहीं पे जमीन में, पहाड़ में क्रैक, ओपन स्पेस, सैंडी मटेरियल, लूज मटेरियल होता है, जहां से ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये जमीन के बाहर आ जाता है, ऊपर से जो प्रेशर रहता है, लेकिन इस क्रैक से, इस सुराख से, इस ये जो फिशर होता है, क्रैक ओपन स्पेस होती है, इससे ये पानी बाहर निकलता है, जमीन पे फैल जाता है, इसको हम स्प्रिंग कहते हैं। इस टाइप के स्प्रिंग को हम ग्रेविटी स्प्रिंग कहते हैं। सो सिंपल सा है, ग्रेविटी स्प्रिंग कंप्लीटली कन्फाइन नहीं होता है इम्परवियस बेड से, नंबर एक बात। दूसरी बात, ये ओपन स्पेस से, लूज सैंड मटेरियल, ग्रेवल्स, पेबल्स की से बाहर आने की कोशिश करता है, ओपन स्पेस से बाहर आने की कोशिश करता है, किस वजह से, ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्रेविटी। बस यही है ग्रेविटी स्प्रिंग। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे ऑटिज्म स्प्रिंग को समझने की। सो दिस वाज रिगार्डिंग द ग्रेविटी। इस आसानी से हम इस डायग्राम से इसको समझ सकते हैं।